Welcome everyone. Today's topic will be national income and it will be the part of macroeconomics series. So, laugh, learn, leap. Okay? The highlights of the topic today will be national income definitions, national product and domestic product, methods to calculate those national income aggregates, difficulties in measuring national income, importance of measurement of national income. Ultimately, there will be some if and buts in the whole session, which will be included in the next lesson. So, let's start our topic. National income. Introduction to the topic is that it is a sum total of all incomes earned in a nation during a specific period, usually a year. These terms are used to check the performance of an economy both over short and long period. Here, incomes earned in a nation, it may be by government or it may be by a individual firm or an industry, usually in a year. So, how do they earn? They produce, they sell, consumer purchases, and the income they generate from it, whole together of whole society, is known as national income. It is there to check the performance of our economy functioning. In standard way, in economics, there are definitions. Here, there are two types of definition: traditional definition and modern definition. In traditional definition, Marshall, Pigou, and Fisher definitions are described here. So let us discuss about Marshall definition. Marshall, in his definition, told the labor and the capital of country acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kinds. This is the true net annual income or revenue of the country or the national dividend. In this definition, the word net refers to deduction from the gross national income in respect of depreciation and wearing out of machine. Here, Marshall has given a typical definition of national income, which do not include income from abroad. So, there are a lot of defects in this definition. It do not suits in this world. Goods and services produced to be calculated are difficult. There exists a fair mistake of double counting, and it is not possible to estimate national income because some commodities are not marketed. So, definition fails to give a sound definition. Now, let's talk about Pigou, who described the definition by commodity income with income from abroad. His definition was quite relevant, but lagged in some points. Pigou definition was precise, simple, and practical, but not free from criticism. According to the definition, when commodities can be exchanged for money, only commodities which can be exchanged for money were included. What about the barter system? The next mistake was that backward and underdeveloped countries with major portion of produce is simply bartered was not totally correctly included in national income. And the last definition here was Fisher's. Fisher gave the definition of consumption. The national dividend or income consists solely of services as received by ultimate consumer.
whether from their material or from human environment. So, but this definition seems to be correct but very less useful. There was no use of this definition given by Fisher a lot. Seems to be correct but not practically. It is difficult to estimate money value of net consumption. Second, certain consumption goods are durable and last for many years. So means production will be halted for many years if the same product exist for more than a year. Durable goods generally keep changing hand, leading to the change in ownership and value in second-hand goods. So these type of things defected the definition of Fisher. Now let's talk about the modern definition. What does modern definition say? It was given by Simon Kuznets. It tells us the net output commodities and services flowing. It says flowing, not stock. Earlier, we have talked about stock and flow concepts. So here, the national income is a flow concept. During the year, means to say in a time period, it flows from, the output flows from the country's productive system. The output flows from productive system to the ultimate consumer, which generates income. To whom? To producers. These consumer may be living in the country or outside the country. So it's clear that this definition covers the abroad part too and the domestic part too. Let's go ahead. Now we will talk about how these national income are calculated. So here these are aggregates, and these aggregates are in two parts, which I have defined here. The first one is national product and the second one is domestic product. Domestic means bounded by territory, and the national means it is complete nation. Nation are not the boundaries, rather they are the people who may be living abroad and sending their capital to their own nation. So here nation is a broader term, domestic is a sleeker term. They both are then segregated into two parts, gross and net. So these national product convert it into net national product and gross national product. Similarly with domestic product, net domestic product and gross domestic product. In the next slide, we will see that these are again segregated into two parts, which are factor price and the market price. Means to say we have NNP at factor price and NNP at market price. We will discuss these formulas in our next video. So stay tuned. I'm not defining these topics here because in next video I will try to explain you guys more soundly. This lecture is going to be mainly in English, so I will try to make it bilingual in later part where more definitions are there. For example, the next topic where we are going to learn more definitions, I will use Hindi as my main language. तो अब हम आगे हैं डोमेस्टिक, प्राइवेट, पर्सनल, डिस्पोजेबल, रियल और कैपिटल वाले जो टर्म्स हैं इनको समझने के लिए. तो पहले डोमेस्टिक का हम जो पार्ट देखते हैं वो देखते हैं. इसमें जो हमारी इनकम में जो इंक्लूड होता है वो इंक्लूड होता है वेजेस और सैलरीज, रेंट्स, इंटरेस्ट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट्स. ठीक है. और साथ में इसमें इंक्लूड होते हैं डिविडेंड्स.
मिक्स्ड इनकम सोर्सेस। ये सब मैं जो बात बता रहा हूँ ये पहला टॉपिक है डोमेस्टिक इनकम का, ठीक है। तो जो ये सब मैंने जो काउंट करा है, ये सोर्स ऑफ इनकम्स जो थे, ये नेशनल इनकम को फॉर्म करने में मदद करते हैं अल्टीमेटली। तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट अब्रॉड इनकम आ जाती है। तो जो डोमेस्टिक इनकम होती है वो तो मैंने कहा ना बाउंड्री के अंदर होती है, लेकिन जो नेट अब्रॉड इनकम है ये हमारी इनकम को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है। वो ये कैसे करती है, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे इंपोर्ट से, तो यहाँ पे समझना ज़रूरी है, एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो हमें फ़ायदा कैसे है। एक्सपोर्ट जब ज़्यादा हो रहे हैं तो हम हमारे प्रोडक्ट बेच के अर्न कर रहे हैं, लेकिन जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट खरीद के अपनी अर्निंग को कम कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट जब ज़्यादा होंगे इंपोर्ट से, तो हमारा जो ये है नेट अब्रॉड इनकम वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिवली जुड़ेगा डोमेस्टिक इनकम से। लेकिन वहीं पर अगर एक्सपोर्ट आर लेस देन इंपोर्ट, तो यही चीज़ नेगेटिवली जुड़ेगी डोमेस्टिक इनकम से। तो यहाँ पे क्लियर होता है डोमेस्टिक इनकम क्या है। इसी तरह प्राइवेट इनकम को देखते हैं। प्राइवेट इनकम हमें मिलती है प्राइवेट इंडिविजुअल से, चाहे वो कोई सोर्स हो, प्रोडक्टिव हो, अदरवाइज़ कुछ भी हो। ये एनएनपी फैक्टर कॉस्ट से कैलकुलेट होती है, जो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं किससे रिलेटेड है। इसमें ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स इंक्लूड होता है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट होता है, सोशल सिक्योरिटी कॉस्ट्स लगती हैं, प्रॉफिट एंड सरप्लस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स लगती हैं। अब हम बात करेंगे पर्सनल इनकम की। पर्सनल इनकम क्या होती है? प्राइवेट इनकम, जो प्राइवेट इनकम हमने यहाँ पे पढ़ी है, ये जो टॉपिक है प्राइवेट इनकम माइनस प्राइवेट इनकम में से अगर हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट्स को हटा दें और जो प्रॉफिट पे लगे टैक्स हैं उसको भी हटा दें, तो जो बचता है वो कहलाता है पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम में एक और टर्म आ जाती है डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम जो आपकी इनकम है, अब इनकम पे क्या लगता है? टैक्स लगता है, और वो टैक्स घटा दिया जाए तो आपके पास बचता है डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम हम पूरी की पूरी खर्च इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उस पर टैक्स लगता है, और जो बचता है वो हम अपने अनुसार खर्च कर सकते हैं। तो अब जो मेन टॉपिक आ रहा है वो है रियल इनकम। अब रियल इनकम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये करंट ईयर इंडेक्स और बेस ईयर इंडेक्स को मिला के बनता है। अब एक बात के लिए हम मान लें कि बेस ईयर को हम 100 मान लेते हैं कि वो 100 है आंकड़ा, यानी 2018 को 100 मान लेते हैं, और जो 2022 में जो वो बन चुका है, मतलब कि कितना गुना हो चुका है 100 के, समझो 1 ट्रिलियन था और वो 2.5 ट्रिलियन हो गया है, तो मतलब 250% हो गया है। तो ये जो मेन फैक्टर है, इनका जो रेशियो है, ये काम आता है कैलकुलेशन में। और जो एनएनपी होती है उस साल की, उससे अगर इस इंडेक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आती है रियल इनकम। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, क्योंकि ये हमें बताता है, ये जो रियल इनकम है ये बताता है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। और पर कैपिटा इनकम तो एज यूजुअल रियल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें। पर कैपिटा इनकम में ये टॉपिक है, ये जो पर कैपिटा इनकम है, इसे कैलकुलेट करने के लिए रियल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास आती है पर कैपिटा इनकम। आई होप ये थोड़े बहुत क्लियर हो गए होंगे आपको, इन्हें और डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। अब इसके साथ हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। पहली प्राइमरी, जो बेसिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड होती है। सेकेंडरी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज़, माइनिंग, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड होती है। और टर्शरी सेक्टर, जो सर्विस ओरिएंटेड होती है। इसमें वाइट कॉलर जॉब्स और गोल्ड कॉलर जॉब्स होती हैं। अब ये टर्म जो गोल्ड कॉलर जॉब है, ये हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स
या फिर मैनेजर्स जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, कंपनी CEOs। वाइट कॉलर जॉब जो ऑफिस में बैठ के गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या फिर कोई भी सर्विस करता है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन नहीं आता, इंडस्ट्रीज़ आती हैं। इंडस्ट्रीज़ बैकबोन होती हैं हमारी कंट्री की, लेकिन मैंने इसे बैकबोन बोल दिया तो और चीज़ें बैकबोन नहीं है, ऐसा नहीं है। प्राइमरी सेक्टर हर सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। ऐसे प्राइमरी सेक्टर से होने वाला जो फूड प्रोड्यूस होता है वही टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के लोगों को ज़िंदगी प्रदान करता है। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर ना हो तो डेवलपमेंट मुश्किल है, और टर्शरी सेक्टर ना हो तो R&D मुश्किल है। R&D नहीं हुई तो सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं कर पाएगा, और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं करेगा तो प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन लो हो जाएगी। ये आपस में बहुत इंटरलिंक्ड है। तो आई होप ये तीनों सेक्टर्स हमने बहुत पहले भी पढ़े हुए हैं और क्लासों में। अब बात करते हैं हाउ दीज मेथड्स आर यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो पहले मैं प्रोडक्ट मेथड की बात करूँगा। इसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फाइनल प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड। सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। क्या ऐसा होता है? नहीं। बीच में जोनल डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, होलसेलर आते हैं, रिटेलर आते हैं, और फिर वो कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे अगर हम ये देखें कि जो फाइनल रिटेल प्राइस है जो कंज्यूमर ले रहा है प्रोड्यूसर से कैलकुलेट। अब यहाँ पे टॉपिक क्या है, प्रोड्यूसर के पास कैसे सामान है। चलो मान लेते हैं कि कोई बिस्किट बना रहा है। जो बिस्किट बना रहा है उसे पहले क्या चाहिए? फार्मर से आटा चाहिए, आटे की मिलिंग होगी, मिलिंग के बाद वो प्रोड्यूसर के पास जाएगा जो प्रोसेस करके बिस्किट बनाएगा, जो उसके जोनल हेड को भेजेगा, स्टेट का हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का हो। फिर वो होलसेलर के मार्केट में जाएगा, फिर वो रिटेल मार्केट में आएगी, और फिर उसके बाद वो कंज्यूमर के हाथ में आएगी। समझो बिस्किट पड़ा, बिस्किट की कीमत लगी 20 रुपये कंज्यूमर को, फार्मर से लिया गया 19 रुपीज़ kg आटा। उस 1 kg आटा से बहुत कुछ बन सकता है, वी नो दैट। मिलिंग हुई, उसमें 19 kg जो आटा था, 19 रुपये का जो kg आटा था वो इसको पड़ता है 25 रुपया kg, बिकॉज वो माइनिंग हुई है, मिलिंग हुई है, ट्रांसपोर्टेशन हुई है। फिर उसके बाद प्रोड्यूसर जोनल को बेचता है, वो प्रॉफिट बना के अपना मेहनताना रख के वो 30 रुपये का बेचता है। जोनल होलसेलर को बेचता है 35 रुपीज़ kg, और जो होलसेलर है वो रिटेलर को बेचता है 50 रुपये kg। और यहाँ पे जो कंज्यूमर पर जो रेट जाता है किलो का, मैंने 20 रुपया बिस्किट का पैकेट बोला था, बिस्किट के पैकेट का वजन मुश्किल से 100 ग्राम होता है, तो 200 रुपया kg पहुँच जाता है ऐसे प्राइस। इसमें अगर हम हर पॉइंट पे कैलकुलेट करें कि कितने रुपया kg बिका, तो ये 1 2 3 4 5 6 टाइम्स कैलकुलेट हो जाएगा, डबल नहीं 6 टाइम्स काउंटिंग होगी। तो इसलिए फाइनल प्रोडक्ट मेथड के अंदर ऐसा करते हैं कि हम सीधा जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसका प्राइस देखते हैं, दैट इज़ 200 रुपीज़ kg, और उससे यानी जितने ओवरऑल जितनी प्रोडक्शन हुई है, मान लेते हैं हमारे इकोनॉमी में सिर्फ बिस्किट ही हो रहा है और वो 1000 टन बिस्किट बन रहा है, तो 1000 टन में kg कितने होते हैं, इतने kg हुए, और 200 हम ऐड कर दें तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो 20 करोड़ की हमारी नेशनल प्रोडक्ट हो गई यहाँ पे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसी के साथ वैल्यू एडेड मेथड की बात करते हैं। व्हाट डज वैल्यू एडेड मेथड? वैल्यू एडेड मेथड वैसे ही चेन है हमारे पास, ये प्रोड्यूसर रहा, ये फार्मर रहा, ये होलसेलर रहा, ये रिटेलर रहा, और ये कंज्यूमर है। तो जो यहाँ पे फार्मर था, यहाँ पे जब इसने इसे दिया, वो इसको जो प्राइस मिला वो 20 रुपीज़ मिला था kg का, इसने 25 लिया, इसने 35 लिया, इसने 50 लिया, और इसे 200 में बेचा। यहाँ पे वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है, इसे 20 रुपीज़ थे प्लस 5 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ प्लस 15 रुपीज़ प्लस 150 रुपीज़, तो इन सब को अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड कर दिया जाता है। तो ये वैल्यू एडेड मेथड हो गया। आएगा वही रिज़ल्ट,
इसमें इसमें डबल काउंटिंग नहीं हो रही है, 20 को दोबारा नहीं कैलकुलेट किया जा रहा है, यहाँ पे 25 नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ 5 देखा जा रहा है। तो ये वैल्यू एडिशन हो गई। अब बात करते हैं अगले 2 मेथड्स की। इनकम मेथड। इनकम मेथड को समझाने के लिए मैं और स्पेस का यूज़ करता हूँ। इनकम मेथड के अंदर क्या है, इंटरेस्टिंग है इनकम मेथड, है सारी चीज़ें एक ही, सब कुछ एक ही होगा। जितना आप इनकम जनरेट कर रहे हो उतना ही तो आप स्पेंड करोगे। अब उतना ही अगर आप स्पेंड करोगे तो मतलब है कि इकोनॉमी में जितनी कमाई हो रही है वही खर्च हो रहा है। अब ये जो खर्चे की बात हमने देख ली, स्पेंड किया ना यहाँ पे कंज्यूमर ने, इसको देखने बजाय अगर हम सब लोगों की, जितने भी पीपल हैं या पब्लिक है, सबकी इनकम ही कैलकुलेट कर लें तो वाई टू सी दिस व्हाट दे आर डूइंग एक्सपेंडिचर। हम वो देख लें ना जो कमा रहे हैं। तो फार्मर ने क्या कमाया 20 रुपया, प्रोड्यूसर ने क्या कमाया 5 रुपया। यहाँ पे वैल्यू एडिशन हो रही थी, इसकी कमाई क्या है। अब ये 5 रुपया प्रोड्यूसर का ही नहीं है, इसमें 1 रुपया उस लेबर का है, 2 रुपया उस मैकेनिक का है, कहीं जाके 2 रुपया प्रोड्यूसर का हुआ। तो इसकी इनकम देख ली, इस मैकेनिक की देख ली, इस लेबर की देख ली, और फार्मर की जो 20 है इसके भी आगे चल के फर्टिलाइज़र के लिए, लेबर के लिए, इसके बिल्स के लिए अलग अलग, वो बिल भी तो किसी की इनकम है ना। तो इसी तरह जितनी इनकम है हमारी कंट्री के अंदर, चाहे वो वेजिटेबल हॉकर ही क्यों ना है, या फिर कोई अंबानी ही क्यों ना है, मतलब कि बिजनेसमैन, इन सब की इनकम को कैलकुलेट करो तब भी तो रिजल्ट नेशनल इनकम ही आएगा। तो दिस इज़ व्हाट नेशनल इनकम स्टैंड्स फॉर। अब इसी के साथ हम अगले मेथड की तरफ अप्रोच करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, हम सोचेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोडक्ट मेथड, लेकिन ऐसा है नहीं। लेट अस सी हाउ इट इज़। एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं किस पे, कस्टमर जो खर्चा कर रहा है वो नहीं। दैट इज़ नॉट द चेन हेयर वी आर डिस्कसिंग। हम हर इंसान के अपने एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। लेट अस सी वो जितना एक्सपेंडिचर करता है वो कहाँ से आया है। आइदर उसने लोन लिया है, या तो इनकम जनरेट कर रहा है, या तो उसके पास फार्म है जहाँ से इनकम जनरेट हो रही है। तो इस खर्चे को कैलकुलेट कर लें सबके, तब भी तो हमारे टोटल देश की, नेशन की जितनी स्पेंडिंग हो रही है, एक लैपटॉप जो ख़रीदता है वो रुपये से ख़रीदता है, एक जो खाना लेता है, फूड जिसे हम कहेंगे, वो भी तो एक्सपेंडिचर ही दे रहा है ना। तो इस एक्सपेंडिचर को स्टडी कर लिया जाए और इसका डेटा कलेक्ट किया जाए तो भी तो हमारे पास नेशनल प्रोडक्ट ही आएगा या नेशनल इनकम ही आएगी। ये जो नेशनल इनकम या फिर नेशनल प्रोडक्ट को निकालने का तरीका है ना, इट्स काइंड ऑफ सेम एवरीवेयर, बट जो ट्रेजेक्ट्री उसे निकालने के लिए देखी जाती है, डेटा कलेक्शन जहाँ से किया जाता है, जिस एंगल से किया जाता है, वही इनको नाम देता है प्रोडक्ट मेथड, जहाँ फिनिश्ड प्रोडक्ट को देखा जाता है, यहाँ पे अनफिनिश्ड प्रोडक्ट को देखा जाता है, और इनकम मेथड के अंदर सबकी इनकम्स देखी जाती है, एक्सपेंडिचर में सब कितना कॉस्ट लगा रहे हैं अपनी लाइफ को, एक्सपेंडिचर कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मेथड है। इनकी डिटेल में अगर हम जाएं तो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इनकम मेथड के अंदर। इनकम मेथड का सबसे ड्रॉबैक ये है कि हम सारी चीज़ें इनकम में, इसकी ड्रॉबैक रहेगी कि ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस को कैसे कैलकुलेट करें, जो खुद का बिजनेस चला रहा है उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट करें, साथ में जो फार्मर जो अपने लिए जो अनाज रख लेता है उसको कैसे कैलकुलेट करें, जो वेजेस और सैलरी काइंड में मिलती है, जैसे कि टूर किसी को भेज दिया, किसी को हाउस में रेंट फ्री रख दिया इनकम के तौर पे, उसको कैलकुलेशन में कैसे लाएं, क्योंकि लोग इसे छुपा लेते हैं। साथ में प्रोडक्ट मेथड में भी प्रॉब्लम आती है। प्रोडक्ट मेथड के अंदर आप अगर फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, इसमें सर्विसेज भी हैं, मैं ये क्लियर कर दूं, सारों में सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं, मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ एक सॉलिड प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, फिजिकल प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है। तो सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ इंक्लूड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ में इसमें जो इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स होते हैं उनके बीच में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी इंडस्ट्री के लिए अपना फाइनल गुड अलग है, किसी इंडस्ट्री के लिए अपना फाइनल गुड अलग है। फॉर एग्जांपल एक पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री के लिए वुड या पल्प फाइनल प्रोडक्ट है ना, उनका रॉ मटेरियल है, और लेकिन वो उन तक पहुंच गया तो उन्होंने ख़रीदा है एज ए फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन वहीं पे कंज्यूमर ने तो पेपर खरीदा ना, उसे वुड से क्या लेना देना है पल्प से। तो दैट इज़ द थिंग।
साथ में इलीगल एक्टिविटीज़ को इस प्रोडक्ट मेथड के अंदर लाना। इलीगल तरीके से रुपया तो हमारी सोसाइटी के अंदर आ जाता है, उसे स्पेंड भी करते हैं लोग, फिर उसके बाद वो रुपया वो अल्टीमेट कंज्यूमर के तौर पे यूज़ करते हैं, तो वो तो इंक्लूड हो रहा है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन नहीं आ रही है कहीं पे भी वो जनरेट कहाँ पे हुआ है। साथ में जो कैपिटल गेंस होते हैं, कंज्यूमर सर्विसेज होती हैं जो फ्री में दी जाती हैं, इन्वेंट्री में जो चेंजेस हो जाते हैं, डेप्रिशिएशन जो होता है, ये सब चीज़ें ये प्रोडक्ट मेथड के अंदर थोड़ा कंजस्टेड होती हैं, इन्हें उसके अंदर इंक्लूड करने में दिक्कत आती है। साथ में जो प्रॉब्लम्स हैं एक्सपेंडिचर मेथड की, वो भी कुछ वाइड स्प्रेड ही हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सर्विसेज को कैसे एक्सपेंडिचर में लाओगे कि जो फ्री में मिल रही हैं, जैसे अभी वैक्सीन मिल रही है। साथ में जो ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स होती है, गवर्नमेंट जो क्या कहते पेंशन देती है, उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, वो भी तो खर्चा ही है, हमें टैक्सेस पे करना पड़ता है। वो टैक्सेस और इसमें उलझन सी हो जाती है, कोई एक ही घर से टैक्स भी जा रहा है और ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स भी हो रही है। साथ में जो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं, जो सेकंड हैंड वाली जो मैंने प्रॉब्लम बताई थी थोड़ी देर पहले, वो भी आती है एक्सपेंडिचर वाले में। और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है जैसे डिफेंस है, ये क्या चीज़ है, ये इंक्लूड करते हैं हम अपनी लाइफ के अंदर, डिफेंस एक्सपेंडिचर भी हमारे ऊपर आता है। अभी मैं सारी बात कर रहा हूँ फाइनल प्रोडक्ट की, उस बिस्किट में उस फौजी का भी तो रोल है जो हमारे देश की रक्षा कर रहा है, उसका भी तो रुपया लगा हुआ है उस पर, वो भी तो एक एक्सपेंडिचर है। वो बिस्किट नहीं बनता अगर हम किसी और देश में के गुलाम होते तो उस तरीके से। तो कुछ चीज़ें ऐसी कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम देती हैं। सारी चीज़ों की अपनी एक महत्व होता है और कुछ ना कुछ खामियाँ होती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अब। डिफ़िकल्टीज़ मैंने बता दी, एक कॉन्सेप्चुअल डिफ़िकल्टी होती है और एक स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टी होती है। कॉन्सेप्चुअल डिफ़िकल्टी के अंदर इग्नोरिंग द नॉन एमिएबल गुड्स, मतलब कि कुछ प्रोडक्ट्स को ना हम ऐसे नहीं देख सकते कि वो यूज़ में आएंगे या फिर कैलकुलेटेबल नहीं होते हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ मैंने बताया, नॉन मैंने मॉनेटरी सेक्टर की बात कर ले हम, वो भी एक कॉन्सेप्चुअल डिफ़िकल्टी, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाए। साथ में जो स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स जो आती हैं, हमें अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा बहुत ही मुश्किल है इंडिया जैसी डेवलपिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो पुअर नेशंस में आते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है, तो उधर कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है, लोग सही डेटा नहीं देते हैं, एक स्टैंडर्ड मेथड अवेलेबल नहीं है, अलग अलग स्टेट या फिर वो भी अपनी मनमर्जी करते हैं। मल्टी फंक्शन इंटरप्राइज होते हैं, जैसे एक ही इंडस्ट्री बहुत सारी अपनी ब्रांचेस खोल लेती है अलग अलग सेक्टर के अंदर, और फ़ायदा उठाने के लिए फिर डॉज भी करते हैं वो लोग। डबल काउंटिंग की एक प्रॉब्लम रहती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो ये कुछ परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि अभी तक तो हमने बोल दिया यार ये डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन कुछ अच्छाई भी होती है चीज़ों की। तो अच्छाई जो हमारा नोट रहेगा हमारा, लास्ट में हम इनके बारे में अच्छी चीज़ें बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमें इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप के बारे में जानने में मदद करता है। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ नेशनल इनकम डेटा कि वो हमें ये बताता है कि अभी किस रेट से प्राइस लेवल्स क्या चल रहे हैं और किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स रहेंगे कि नहीं, हमें ज़्यादा खर्च तो नहीं करना पड़ेगा, हमें डेप्ट तो नहीं लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को ज़्यादा, तो इन चीज़ों में होता है इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग। अब इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग, यार अभी तो बोला डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन, तो इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग क्या है? अब क्या होता है ना, बिज़नेस साइकिल होती है हर देश में बिज़नेस साइकिल चलती है अलग अलग। किसी देश में हो सकता है मौसम सीजनल हो, किसी देश में हो सकता है साइक्लिक हो। तो उस दौरान उस चीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए ये डेटा काम आता है इनकम का, कि कब लोगों की इनकम सीज़न की वजह से ज़्यादा हो जाए। बिकॉज जिन लेबर्स जो सीजनल लेबर्स होते हैं उनकी इनकम सीज़न के दौरान तो बढ़ जाती है, जब ऑफ सीज़न होता है तब घट जाती है इनकम। अब इम्पोर्टेंस इन इंटरनेशनल फील्ड, फॉर एग्जांपल अभी बेस्ट एग्जांपल चल रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका, द वर्स्ट डेब्ट ट्रैप्ड कंट्रीज़ हैं। इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो थी वो फेलियर साबित हुई और चाइना ने इन्हें एक तरह से अपना स्लेव बना लिया है। अब बात करते हैं मटीरियल वेलफेयर की, मेजर ऑफ मटीरियल वेलफेयर। अब वेलफेयर तो होता है, उसे कैलकुलेट कैसे किया जाए? गवर्नमेंट जो स्कीम्स चलाती है उसमें जो खर्च आता है, जैसे वैक्सीन पर कितने रुपए लगे, वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम पे कितने रुपए लगे हैं, जो बिजली के बिल माफ़ होते हैं इन पे कितने रुपए लगे। तो ये हमारे लिए जो मटेरियल वेलफेयर जो ला रही है, जो चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रही है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो मटेरियल वेलफेयर में काउंट होती है। और ये कैसे पता चलता है हमें?
इन सब जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि हाँ यहाँ पे ये खर्चा हुआ। ये एक तरह की अकाउंटिंग रखते हैं। साथ में प्रमोशन ऑफ सर्च होती है। क्यों? क्योंकि एक इंडस्ट्री को नहीं पढ़ना पड़ता। जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर, और ख़ासकर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जब हम इस डेटा को पढ़ते हैं, किसको, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें क्या कहते हैं, कोल एंड माइन के बारे में भी जानना होगा कि वहाँ क्या चल रहा है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में पता करना होगा, एग्रीकल्चर के बारे में पता करना होगा। तो इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है, और इसकी वजह से रिसर्च का एक एक क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। इन्वायरमेंट क्रिएट होने से क्या होगा, डेवलपमेंट होगी, और उस डेवलपमेंट से हमारे पास डेटा अच्छा आएगा, क्वालिटी का आएगा। तो यहाँ पे हम क्यों नेशनल इनकम को पढ़ रहे हैं, क्यों ये कैलकुलेट किया जाता है, तो इससे पता चलता है।